Hello friends, how are you? I'm Satyanan guys. I'm a 2019 batch IPS officer, and in paper 2 it's an important concept, part C, social changes in India, and in that the fifth chapter is social movements in modern India. So among the different social movements, environmental movements are important movements, and in the recent years UPSC has started asking question on environmental movements. So in this video we are going to discuss about the different environmental movements or the various forms of environmental movements in India, because this concept is important for paper 2, although social movements जो कॉन्सेप्ट है वो पेपर 1 में भी है, बट एनवायरमेंटल मूवमेंट्स जो है वो स्पेसिफिकली पेपर 2 में दिया हुआ है और जो यूपीएससी इस पे क्वेश्चन भी पूछती है. सो सबसे पहले लेट्स डिफाइन व्हाट आर इकोलॉजिकल मूवमेंट्स. सो इकोलॉजिकल मूवमेंट्स दे आर काइंड ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स. उसमें जो है वो जो मेन एम्फेसिस जो है या जो मॉडर्न टाइम्स में जो हमारा ग्रेटर कंसर्न है रिगार्डिंग डेवलपमेंट, बिकॉज एवरी कंट्री वांट्स टू गेट डेवलप्ड into a developed nation, and the main focus has been on development of infrastructure and development of economy. So the major deal or the great deal of the concern about the unchecked use of natural resources. We know that for development we have to use the natural resources, and the model of the development which is adopted by most of the governments or the most of the countries is that it is such that the new needs that demand further greater exploitation of the already depleted natural resources. So for example जो forest जो हैं वो हमारे natural resources हैं, but development के लिए जो हैं वो उनका फर्दर डिप्लीशन जो है वो मैंडेटरी हो जाता है. इसी प्रकार से अगर हमें माइनिंग करनी है तो भी जो है वो हमें फॉरेस्ट्स को जो है वो हटाना पड़ेगा. इसी तरीके से जो हमारे लीनियर प्रोजेक्ट्स हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो आपके रोड एंड रेल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए भी जो है वो बहुत सारे फॉरेस्ट्स को काटना पड़ता है, या हिल्स को जो है माउंटेन्स को जो है उनको भी कट करना पड़ता है. सो दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एज्यूम्स दैट द डेवलपमेंट of the country or the development of economy is beneficial for all the section of the people, but this is questionable whether the development is equitable for all or not. यानी कि जो fruits of development है वो क्या वो सबको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं. So this is basically a debate of development versus displacement. So the main issues which are concerning the ecological movements are the construction of the big dams and the displacement of the people as its result, setting up of industries and the displacement of agricultural people and industrial pollution as well. Along with that, in ecological movements there are various different issues including economic issues, ecological issues, political and cultural issues, and all these issues are interlinked to each other. So now we will discuss a very important example of ecological movements or environmental movements in India, and that is Chipko movement. So UPSC has asked this question 2 or 3 times in the previous 10 years. So this is an important concept and we will discuss it from different dimensions. So basically Hug the Trees movement in Himalayan foothills, this is known as Chipko movement. There is another movement with a similar concept, Apiko movement. It is in southern इंडिया, पर्टिकुलरली द स्टेट ऑफ कर्नाटका. सो अपिको मूवमेंट भी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. दिस कैन ऑल्सो बी रिटन डाउन एज एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल मूवमेंट. सो इट इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द इंटरलिंक्ड और इंटरमिंगल्ड इंटरेस्ट्स एंड आइडियोलॉजी. जो हमने आइडियोलॉजी की बात की डेवलपमेंट वर्सेस डिस्प्लेसमेंट की, या डेवलपमेंट फॉर ऑल, एंड द कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट वर्सेस द सोशलिस्ट इंटरेस्ट. So in this Chipko movement the villagers, their main concern was to save the oak and rhododendron trees or forests near the Gadwal region of Uttarakhand. So when the government forest contractors, particularly the sports industries, when they came to cut down the trees, villagers stepped forward to hug the trees to prevent their being felled. यानी कि उन्होंने जो है वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए ट्रीज़ को हग कर लिया. सिमिलर एग्जांपल जो है वो हम प्री इंडस्ट्रियल हम प्री इंडिपेंडेंट टाइम में देखते हैं कि जो जोधपुर स्टेट के जो बिश्नोईज थे उन्होंने भी जो है वो ट्रीज़ को हग किया था. सो एट स्टेक वॉज द क्वेश्चन ऑफ विलेजर्स सब्सिस्टेंस सिंस दे रिलाइड ऑन द फॉरेस्ट्स टू गेट द फायरवुड, फॉडर एंड अदर नेसेसिटीज़ इंक्लूडिंग वाटर. सो यहाँ पे जो विलेजर्स की जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ है वही जो है वो स्टेक पे थी, वही जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही थी. So the main conflict was the livelihood of the villagers versus the government's desire to generate revenue by selling the timber.
So we can say that it was on an economic scale, it was a economy of subsistence for the farmers or the hill villagers versus the economy of profit for the industrialist. Now we will see the ecological issues involved in the Chipko movement. So along with the issue of social inequality जो हमने already बात कर ली, there was issues of ecological sustainability also, because by the rampant cutting down of the trees or felling of the forests, there was a form of environmental destruction that resulted in devastating floods and landslides in the region of, or the hill region of Uttarakhand. So for these villagers, both these red issues means the economical issues and green issues means the ecological issues. So main ecological issue is the floods and the landslides, which results in displacement of people and affects the lives of people. आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट टाइम्स में भी जो है उत्तराखंड और हिमाचल में इस साल जो है बहुत सारे फ्लैश फ्लड्स आए हैं, एंड आपने सोशल मीडिया में वीडियोस भी देखा होगा, आपने अखबार में जो है वो इनके न्यूज़पेपर में आपने आर्टिकल्स भी पढ़े होंगे. सो यहाँ से जो है वो आपको करंट अफेयर्स के इश्यूज़ को जो है वो सोशियोलॉजी के साथ लिंक करना है. अगर एनवायरमेंटल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो आपको जो रिसेंट के जो एग्जांपल्स हैं जहाँ जहाँ फ्लैश फ्लड्स हुई है उसको आपको शो करना पड़ेगा. सो वाइल देयर सर्वाइवल dependent on the survival of the forests, they also valued the forest for its own sake as a form of ecological values that benefit soul. So यहाँ पे जो है वो उनको बेसिक सर्वाइवल तो दे ही रहे थे फॉरेस्ट, साथ में जो उनकी एक इकोलॉजिकल वैल्यू भी थी, बिकॉज दे रेस्पेक्ट द फॉरेस्ट्स. Then there was third issue which was political in nature, and it was mainly the resentment of the hill villagers against a government that was it was considered that it is the government which is manned by the people from the plain areas and headquartered in the plains as well. So it was assumed that, or there were allegations that the government is indifferent and hostile to the concerns of the hill villagers. So पहाड़ी versus नॉन पहाड़ी जो है वो हमेशा एक इशू रहता है. So it is a issue of political representation as well. In 2016, if you see, UPSC asked this question, discuss various forms of environmental movements that were started in India. So it's a straightforward question. You have to write different types of environmental movements that have been started in India. Now we will discuss this question which was which was asked in UPSC in 2014. It was a straightforward question, and it was a eye-opener for all the aspirants, because none of them has prepared from this point of view. Each Chipko movement is an example of ecofeminism. So first of all, we will understand what is ecofeminism. So this term was coined by a French writer, François Dubon, but it was used in the Indian context by a activist and a scholar, Vandana Shiva. So ecofeminism basically it called the attention to the simultaneous subordination of nature and women, यानी कि जो सबॉर्डिनेशन ऑफ वीमेन एंड नेचर जो है वो साइमल्टेनियस चलता है इन द वेक ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन. दिस वाज मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ इकोफेमिनिज्म, और दिस इज मेन डेफिनेशन ऑफ इकोफेमिनिज्म. सो वंदना शिवा यूज्ड दिस कॉन्सेप्ट टू एक्सप्लेन द चिपको मूवमेंट फ्रॉम द prism of ecofeminism. She argued that in Indian context the ascendancy of patriarchy, it has resulted along with the rise of colonialism and the western science, and it undermined the indigenous thought system that envisaged a cosmic balance of feminine and masculine principle. So उसका आर्ग्यूमेंट था वंदना शिवा का कि इंडियन जो ट्रेडिशनल इंडियन या जो इंडिजिनस थॉट सिस्टम है उसमें जो है वो एक मेल एंड फीमेल के बैलेंस के बारे में बात की गई है, बट जैसे जैसे कॉलोनियलिज्म बढ़ा और जैसे जैसे वेस्टर्न साइंसेस का जो है वो डोमिनेंसी इंडिया में बढ़ी, सो देयर वाज एन असेंडेंसी ऑफ पैट्रियार्की. इट वाज हर आर्ग्यूमेंट एंड शी एक्सप्लेन्ड इट for the Chipko movement. She argued that the major participant in the Chipko movements were not the male members of the family but the women or the female members of the family, because it was their responsibility to collect the food fodder from the forest and water also. So क्योंकि जो विमेन की जो सब्सिस्टेंस है या जो विमेन की जो डिपेंडेंस है वो ज़्यादा है फॉरेस्ट पे, इस वजह से जो है वो विमेन वर द मेन फोर्स विच was participating in the Chipko movement. Her argument is that subjugation of women goes parallel to the subjugation of nature in a male-dominated society. So underlying Chipko movement is an appreciation of the fact that women's interests in the environment arose from the gender division of labor. Because हम जानते हैं कि जो हमारी सोसाइटी है जहाँ पे घर के लिए जो है वो फूड एंड फॉडर कलेक्ट करना पर्टिकुलरली फ्रॉम द फॉरेस्ट इज़ द जॉब ऑफ अ वुमन. एंड आप जाएंगे अगर हिल स्टेट्स में या अगर आप
हिमाचल प्रदेश या अगर उत्तराखंड की तरफ आप जाएंगे हिल्स में, तो आप देखेंगे कि सड़क के किनारे जो मोस्टली जो फ्रूट्स वगैरह जो सेलिंग के लिए जो शॉप्स रहती है, इवन अगर शिमला की मॉल रोड या अगर आप कहीं पे भी किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस में जाते हैं, तो आप देखेंगे कि जो महिलाओं की जिम्मेदारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है इन स्टेट्स में. सो दिस वॉज द थियराइजेशन ऑफ वंदना शिवा टू एक्सप्लेन द चिपको मूवमेंट फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ इको फेमिनिज्म. तो ये तो जो है इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट है, बट इसको जो है वो आपको क्रिटिसाइज़ भी करना है या इसके जो अगेंस्ट में भी आपको आर्ग्यूमेंट देने हैं. सो इट इज़ क्रिटिसाइज्ड फ्रॉम मेनली टू पर्सपेक्टिव. फर्स्ट इज़ दैट वंदना शिवा जो है वो कॉस्मिक बिलीव्स की बात करती है, जो फेमिनाइन और मैस्कुलिन जो इक्वालिटी की बात की गई है. सो ये जो है वो नॉन हिंदू सोसाइटी में जो है वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं इसके आर्ग्यूमेंट्स. एंड सेकेंड जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये कहा गया है कि जो विमेन की जो इंटरेस्ट्स हैं वो भी जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, पर्टिकुलरली इन एनी सोसाइटी अलोंग द एक्सिस ऑफ पावर. यानी कि अगर आप किसी फैमिली में देखेंगे तो जो एनवायरमेंटल इंटरेस्ट जो एक डॉटर इन लॉ के हैं वो सेम नहीं होंगे और दे मे नॉट कोइंसाइड विद दैट दोज ऑफ द मदर इन लॉ. सो यहाँ पे जो है वो क्योंकि वंदना शिवा ने विमेन एज ए क्लास जो है वो कहा है कि सारे वीमेन के इंटरेस्ट्स अफेक्ट हो रहे थे, बट इट हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड कि सारे वीमेंस के इंटरेस्ट भी जो है वो सेम नहीं है एंड द इंटरेस्ट्स आर डिफरेंट अलोंग द एक्सिस ऑफ पावर. जो पावरफुल वीमेन हैं उनके इंटरेस्ट डिफरेंट है, जो नॉन पावरफुल वीमेन हैं उनके इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है. नाउ आई एम गिविंग सम फूड फॉर थॉट टू यू गाइज. एंड फर्स्ट इज़ द क्वेश्चन कि हम जो करंट अफेयर्स को सोशियोलॉजी से कैसे लिंक करें. सो जो प्रेजेंट टाइम्स में जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स जो हुए हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, इससे जो है वो आपको लिंक करना पड़ेगा एनवायरमेंटल इश्यूज़ को. आप जब न्यूज़पेपर में आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो आप इसको जो है वो एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें. नेक्स्ट इज़ द इकोलॉजिकल मूवमेंट्स. ये जो है एक क्वेश्चन भी आ सकता है, क्या जो इकोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं are they form of old social movements raising the issues of class based inequalities and resource distribution, or are they form of new social movements that raises the concern of ecological sustainability and cultural rights of the people. तो अगर आप जो है वो थोड़ा सा पीछे जाएंगे करंट अफेयर्स में या अगर 2013-2014 के आसपास अगर जाएंगे तो जो उड़ीसा की जो डोंगरिया कोंद ट्राइबल्स जो हैं उन्होंने जो है वो काफ़ी हद तक एक मूवमेंट रेज किया था या एजिटेशन किया था बहुत लंबे टाइम तक. उस टाइम पे जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने जो सैंक्शंस दे दी थी आयरन और माइनिंग के लिए, तो उस टाइम पे जो काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे. तो बिकॉज डोंगरिया कोंद ट्राइबल्स जो हैं उनके बिलीव्स हैं कि जो पहाड़ जो होते हैं दे आर लाइक देयर गॉड, दे कंसिडर माउंटेन्स एज देयर गॉड. सो यहाँ पे जो है वो उनके कल्चरल राइट्स भी जो है वो क्वेश्चन हो रहे थे एंड दे डिडंट अलाउ द माइनिंग लाइसेंसेस. एंड बहुत लंबे टाइम तक जो है वो ये आयरन और माइनिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो पाया था, पर्टिकुलरली उन एरियाज़ में जहाँ पे डोंगरिया कोंद ट्राइबल्स रहते हैं. सो ये जो है वो एग्जांपल आप एनवायरमेंटल मूवमेंट्स में लिख सकते हैं. अनदर क्वेश्चन विच आई थिंक यूपीएससी कैन आस्क इन द रिसेंट ईयर्स बिकॉज देयर वाज सो मच कंट्रोवर्सी रिगार्डिंग द नर्मदा डैम कंस्ट्रक्शन और द नर्मदा बचाओ आंदोलन विच वॉज लेड बाय मेधा पाटकर. सो रिसेंट में भी जो उस पर काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई है. सो अगर इसको आप सोशियोलॉजिकली अगर स्टडी करना चाहते हैं, सो आई एडवाइज़ यू टू रेफर टू दिस चैप्टर बाय रीता बरारा इन द हैंडबुक ऑफ इंडियन सोशियोलॉजी विच इज़ रिटन बाय वीना दास. सो यहाँ जो है वो आप नर्मदा बचाओ आंदोलन और नर्मदा एंटी डैम एजिटेशन के बारे में जो है वो डिफरेंट स्कॉलर्स के व्यूज़ आपको इस चैप्टर में मिल जाएंगे. सो आई एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन विच यूपीएससी कैन आस्क इन द रिसेंट ईयर्स. यहाँ पे जो आपको फेवर और अगेंस्ट में जो है वो दोनों आर्ग्यूमेंट देने होंगे कि क्या जो है वो नर्मदा बचाओ आंदोलन, बिकॉज देयर वाज अ स्टडी इन रिसेंट टाइम्स विच सेज दैट द नर्मदा डैम हैज़ बीन बेनिफिशियल फॉर द पीपल हु हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम. एंड इसी की वजह से जो है वो वर्ल्ड बैंक क्योंकि इसको फंडिंग कर रहा था, नर्मदा बचाओ आंदोलन की वजह से वर्ल्ड बैंक ने उस फंडिंग को विड्रॉल कर लिया था. तो यहाँ पे जो एक दूसरा आर्ग्यूमेंट की जो इंडिया में जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग जो हैं या जो एसोसिएशंस जो है वो एंटी डेवलपमेंट उनका माइंड सेट है, ये भी जो है वो एक आर्ग्यूमेंट्स या एक एलिगेशन है अगेंस्ट द people who are leading these different social movements. So these type of question UPSC can ask. So thank you so much guys for watching the video till the end, and I request you to share this video to the maximum number of people. इसके पहले जो सोशियोलॉजी पेपर 2 में मैंने दलित मूवमेंट्स पे जो वीडियो बनाया था उसके आई थिंक अराउंड 10,000 व्यूज़ हो चुके हैं. सो इट इज़ अ बूस्टर फॉर मी and in the social movements in India, this is second video and I covered an important topic
and I think that in the recent years UPSC is going to emphasize on this topic, environmental movements in India. So जब भी आप जो है वो न्यूज़पेपर में एनवायरमेंटल मूवमेंट से संबंधित अगर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको जो है इस टॉपिक से लिंक करके आप उसको पढ़ सकते हैं. थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे.